میں یہ جانتا ہوں کہ وہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آسما کا بلال ہے مرشد، مرشدوں کا بلال ہے مرشد، اور دھجیاں اڑ گئی جوانوں کا کربلا، دھجیاں اڑ گئی، دھجیاں اڑ گئی، دھجیاں اڑ گئی جوانوں کا کربلا کا سوال ہے مرشد، اور میرے پیرانے پیر کی تلوار غوث اعظم کی میرے پیرانے پیر کی تلوار، میرے پیرانے پیر کی تلوار، میرے پیرانے پیر کی تلوار غوث اعظم کی ڈھال ہے مرشد۔ اور اگر بات سچی ہوگی تو بولیے گا کہ حسن میں جلوے اب ایسی ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیے بس بکرا کو جب قربانی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح پھولوں کا ہاتھ اٹھنا گیا۔ آسما کا بلال ہے مرشد، مرشدوں کا بلال ہے مرشد، دھجیاں اڑ گئی جوانوں کی کربلا کا سوال ہے مرشد، اور غوث اعظم کی ڈھال ہے مرشد۔ اور حسن میں جلوے اب ایسی ہے، عشق میں بے مثال ہے مرشد۔ حسن میں جلوے اب ایسی ہے، عشق میں بے مثال ہے مرشد۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ فراز عشق میں میری اڑان دیکھو گے زمین والو، میرا آسمان دیکھو گے، اور جہاں حضور کی عظمت میں بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان جانو گے۔ جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے۔ اور علی ہے فاطمہ زہرا حسن و حسین، علی ہے فاطمہ زہرا حسن و حسین بھی ہے، میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے۔ علی ہے فاطمہ زہرا حسن و حسین بھی ہے، میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے، میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے۔ اور ہر ایک شہر میں آرام کر رہے ہیں، ہر ایک کا پسینہ پی لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہکنے کے لیے حسن کرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا، اور نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں تو پھر جنت نے بھی رنگے مدینہ پی لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں تو پھر جنت نے بھی رنگے مدینہ پی لیا ہوگا۔ بہت ہی محبتوں کے ساتھ ابھی آپ زاہد رضا کو سماعت کر رہے تھے، بالکل اسی طرح میں چاہتا ہوں آپ لوگ بیدار رہیں، اس لیے کہ ایک باہر سے مہمان آئے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیے تو یقیناً وہ شخص جا کر کہے گا کہ میں فلانا شخص فلانا جگہ گیا تھا بنگال کی زمین پر، یقیناً وہاں کے سامعین سب عاشقان مصطفیٰ نظر آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کے چہرے کو مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اگر آپ کی اجازت نہیں ہوتی پھر بھی میں شعر سناتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہاں نہیں سنتے گھر پہنچ جاتے تو میں آپ کا گھر پہنچ کے شعر سناتا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں بھی نہیں ہوتے انتقال ہو جاتے تو آپ کے قبر پہ جا کے ہم شعر سناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شعر ہی کچھ ایسا ہے۔ اب میں آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر کہ دیارے خلد کے پرکیف زینے تک پہنچتا ہے، حضرت کہ دیارے خود کے پرکیف زینے تک پہنچتا ہے، محبت پیار کا روشن خزینے تک، سبحان اللہ۔ بہت ہی کنجوسی کے ساتھ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کنجوسی کے ساتھ حضرت یہ لوگ سماعت کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ اور غلام کے سفر ہو رہی تھی ٹرین میں، غلام نے کہا بادشاہ سے کہ حضور مجھے بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھلا دیجئے،
बादशाह ने कहा कि अगले स्टेशन उतरेंगे, वहां खाना खा लेना। अगले स्टेशन जब पहुंचा, गुलाम ने कहा कि हुजूर पहुंच गए, खाना खिला दीजिए। बादशाह ने कहा कि अगले स्टेशन घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच के खाना खा लेना। जब अगले स्टेशन पहुंचने ही वाला था, बादशाह को एक मूंगफली का दाना मिला। उसने उठाया, 2 भाग किया, खुद एक भाग खाया और एक भाग अपने गुलाम को खिलाया और कहने लगा कि देखो, मेरे साथ रहोगे तो इसी तरह खाते पीते रहोगे। समझ रहे? इसी तरह कंजूसी की हद होती है, लेकिन माशाअल्लाह सब यहाँ गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर फैजानुल हुदा से मोहब्बत करने वाले हैं। वो खामोश बैठ ही नहीं सकते हैं। अब मैं आपकी समातों के दहलीज पर शेर के प्यारे खुद के पुरकैफ जीने तक पहुंचता है। मोहब्बत प्यार का रोशन खजीने तक पहुंचता है। मियां अजमेर ऐसा डाक खाना है तस्वुर का, जो खत डालो फौरन मदीने तक। मियां अजमेर ऐसा डर रहे हैं कि किसी से आप लोग डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, समझ रहे हैं? आवाज तो आते रहती है, बहुत आवाज आती है मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों को मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आवाज आई थी दिल्ली से कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा 2021 तक, लेकिन सब डरे हुए थे। गरीब नवाज का मस्ताना कैसे डरे? गरीब नवाज से जो मोहब्बत करता है वो कैसे डरेगा? हुजूर रिजवानुल हुदा से जो मोहब्बत करता है वो कैसे डरेगा? हुजूर सैयद फैजानुल हुदा से जो मोहब्बत करता है वो कैसे डरेगा? औलिया इकराम से, गौसे पाक से, गरीब नवाज से जो मोहब्बत करता है वो कैसे डरेगा? जिनके दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत नहीं हो, उनको तो हमेशा डरना पड़ेगा। समझ रहे? जिनके दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत है वो कभी नहीं डरेगा। आवाज आई थी दिल्ली से कि भगा दिया जाएगा मुसलमानों को, सब डरे हुए थे। गरीब नवाज का मस्ताना उठा और कहने लगा कि क्या कहा? हमें गरीब नवाज के हिंदुस्तान से भगा देगा? कहा हाँ। कहा अबे जालिम सुनो, जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट को नहीं उठा पाया तो हम आशिके गरीब नवाज को हिंदुस्तान से। आपकी सदाएं उन लोगों तक होनी चाहिए कि अबे नादान, जब मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है हिंदुस्तान में, तो हम सुन्नी बरेली मुसलमान कैसे जाएं पाकिस्तान में? समझ रहे? ये गरीब नवाज का मसला, ये गरीब नवाज के हिंदुस्तान है। हम किसी से नहीं डरते हैं। चंद के लिए बादशाहियत आती है, चले जाती है, लेकिन गरीब नवाज की बादशाहियत ऐसी है। अब सुने, मैं आपकी समातों के दहलीज पर शेर पढ़ना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? सुनेंगे? बिल्कुल। एक बार अपने हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह, और बदल कर कह दें या हबीब अल्लाह। राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था गजल का शेर कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, घबराना नहीं है। समझ रहे? ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। हसन रजा को बहुत कम सुनने को मिलता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल आपके दरमियान आया है तो चाहता है कि कुछ शेर आपकी ज़हनो फिक्र तक छोड़ दे, जो आपकी ज़हनो फिक्र में कैद हो जाए। राहत इंदौरी ने कहा था कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है मियां, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है मियां, आसमान थोड़ी है। लहू हमारा भी शामिल है इसी मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लहू हमारा भी शामिल है इसी मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब लफ्ज़ थोड़ी की बात आगे बढ़ी तो गरीब नवाज का मस्ताना कहता है कि नबी के फिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। नबी के फिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है। तैयारे ख्वाजा है, कलियर है और शहरे पिंड। तैयारे ख्वाजा है, कलियर है और शहरे पिंड है। बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। तैयारे ख्वाजा है, कलियर है, शहरे बरेली है। तैयारे ख्वाजा है, कलियर है
ये भारत महान कहिए थोड़ी है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी में बहुत ही शेर आप सुनेंगे हसन रजा से, लेकिन आपकी खामोशी को देखकर लफ्ज़ थोड़ी पे शेर याद आ रहा है कि बिल्कुल आपके चेहरे पे ऐसी उदासी छाई हुई है कि जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयसर हो वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयसर हो वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। मैं बड़े नाज पर शहंशाह तरन्नुम जनाबे हसन रजा तशरीफ फरमा है, उससे कबल मैं चाहता हूँ कि जनाबे अब्दुल रहमान कादरी को आपकी समातों के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अपने हाथों को उठा लें, लेकिन इसलिए कि आप लोग बहुत होशियार हैं, फिर नीचे कर अभी नारा नहीं लगा रहे, समझ रहे? नारा लगाने के लिए हाथ उठाए, हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, इसलिए कि जितना आप लोग होशियार है उतना हम लोग भी होशियार हैं, समझ रहे? बहुत परेशानी के साथ हम लोग शेर पढ़ रहे हैं। इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाल, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा का नाम, नहीं छोड़ेंगे, हुजूर फैजानुल हुदा का नाम, नहीं छोड़ेंगे, हुजूर फैजानुल हुदा का नाम। सारी दुनिया को पता है रिजवानुल हुदा, बच्चा बच्चा जानता है रिजवानुल हुदा कौन है। सारी दुनिया को पता है रिजवानुल हुदा कौन है। उसकी नादानी पे हैरत होने लगती है मुझे जब कोई पूछता है हसन रजा रिजवानुल हुदा कौन है। उसकी नादानी पे हैरत होने लगती है मुझे जब कोई पूछता है हसन भाई रिजवानुल हुदा कौन है। बेहतरीन अंदाज में अभी नबी की नात आप समाप्त कर रहे थे, लेकिन जिस तरफ पढ़ रहे थे बेचारा वो कलेजी लगा के, आप लोग कलेजी तो बात छोड़िए, थोड़े से आप अपनी जबान को भी नहीं खोल रहे थे, समझ रहे? बेहतरीन अंदाज में जिस तरह नबी की नात पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। यकीनन ऐसा लग रहा है कि हजरत दीवानगी में कम रफी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। दीवानगी में कम रफी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। महरूमियों के दौर में न जाने किन हसरतों के साथ, अरे जनाब हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। समझ रहे हैं? ये हालात आज हो चुका है, लेकिन माशाअल्लाह आप लोग भी बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार अपने हाथों को उठाकर कह दें या रसूलुल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या हबीबल्लाह। अभी तक आप लोग सोए हुए थे, लेकिन अब लगे कि आप लोग यहाँ की जमीन पे बैठ के गरीब नवाज की महफिल पे आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी के गुंबदे हजरा के छांव में बैठ के नबी की नाम समाप्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल अब लगे आप बेदार हो जाएं, इसलिए कि बिहार के सरजमीन से वो खूबसूरत लहजा जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मरमर से तराशा हुआ चांद सा पैकर होठों से मोहब्बत का रस घोल रहा है। मरमर से तराशा हुआ चांद सा पैकर होठों से मोहब्बत का रस घोल रहा है। जब वो बात करते हैं तो होता है महसूस इंसान नहीं ताजमहल। वो खूबसूरत आवाज जो आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, बिल्कुल वो खूबसूरत आवाज को आप समाप्त करेंगे, लेकिन जिस तरह आपकी समाप्त होगी उसी तरह वो भी आपकी खिदमत करेंगे। बिल्कुल आप बेदार हो जाए और एक शेर सुने आपकी समातों के दहलीज पे कि अताए रब के तलबगार नात बनने लगे। सुभान अल्लाह। भूल गए आप? भूल गए? देखिए हम लोगों को बार बार बदल के शेर पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों को तो बार बार वही बोलना पड़ता है।
सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आप लोगों को ये कह दिया जाएगा काम बदल ले, आप लोग शेर पढ़िए, हम लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कितना मुश्किल है कि नहीं? बिल्कुल आप लोग सुभान अल्लाह भूले नहीं, इसलिए कि सुभान अल्लाह भूलना नहीं चाहिए, समझ रहे? इसलिए कि हजरत इसी तरह एक प्रोग्राम में एक शायर गए नबी की नात पढ़ने के लिए, कागज में कलाम लिख कर जब वो गुस्ल किए अपने हुजरे में, और जब मिंबरे नाज पर आए, पहला शेर याद ही था कि जली शमा हुआ परवानों का, सुभान अल्लाह, जली शमा हुआ परवानों का कागज भूल गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ रहे? लेकिन आप लोग अगर भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग शायर हजरात मिंबरे नाज पर तशरीफ फरमा है, शायर हजरात की ये मिजाज है, अगर कोई शेर भूल जाए तो कभी भी कुछ मिला सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर भूलेंगे तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा। बिल्कुल मोहब्बतों के साथ कहते या रसूल अल्लाह, तो अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक नौजवान की जब शादी हुई, अपने दोस्त से कहा कि दोस्त मेरी शादी हो रही है, ससुराल में क्या मुझसे सवाल करेगा मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा बता दे तो मेहरबानी होगी, जो ससुराल वाले मुझसे सवाल करें और मैं सवाल का जवाब दे दूं। दोस्त ने कहा कि दोस्त बड़ी बात नहीं है, जो भी सवाल करेगा पहले सवाल में आप हाँ कह दीजिएगा, दूसरे सवाल में ना कह दीजिएगा। बोला ठीक है। ससुराल गया, सास से मुलाकात हो गई। सास को तो आप जो लोग जानते हैं ना, बिल्कुल ये तो आप लोग जानेंगे। सास से जब मुलाकात हुई, सास के जानिब मुखातिब होके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोले? करते हैं आप लोग? करते हैं सलाम जी। सास को सलाम करना अच्छी बात है, आप लोग ये कीजिएगा, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल सलाम से बहुत दूर आप लोग नजर आते हैं। उस शख्स ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, सास ने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बेटा आपकी माँ की तबीयत अच्छी है? कहा हाँ। कहा मेरी बेटी जो आपके निकाह में है वो सही है? कहा ना। कहा बुखार लग गया था? कहा हाँ। कहा डॉक्टर को दिखा के दवा नहीं दिलाया? कहा ना। जो ही इतना सुना सास गुस्सा तड़प उठा और सास गुस्से में आके कहने लगी कि जालिम मेरी बेटी को मार ही डालोगे? कहा हाँ। समझ नहीं, यही हाल है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह हम लोग कभी बगैर समझे हुए शेर पढ़ते हैं, उसी तरह कभी कभी आप लोग बगैर समझे हुए सुभान अल्लाह कह दिया करें। समझ गए? ये नबी की महफिल है, नबी की बात पर अगर आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो आपकी यही नामाए आमाल कल मैदाने महशर में आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, आप कामयाबी की मंजिल बनते हुए नजर आएंगे। एक बार अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात। देखिए शेर व शायरी करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये आप लोग मत समझिए कि शेर व शायरी करना बहुत ही आसान काम है। आप लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि शेर व शायरी करना बहुत आसान काम है। एक दोस्त ने एक शायर से कहा कि ये दोस्त ऐसा कुछ बताइए कि मैं भी शेर व शायरी करने लगूंगा। तो उसने कहा कि दोस्त शेर व शायरी करना आपकी बस की बात नहीं है। तो उसने कहा कि क्यों आखिर इसमें राज क्या है? उसने कहा कि ए दोस्त तू भी लिखा कर शायरी, मेरी तरह तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। शेर सुनकर जब लोग फेंकेंगे अंडे और टमाटर तो रात की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन माशाअल्लाह आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो बिल्कुल मेरा भी दिल बाग होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एक माहौल बन जाए जो 500 किलोमीटर का सफर करके आपके सरजमीन पर नबी की नाम सुनाने के लिए आए हैं। शहंशाहे तरन्नुम जनाब हसन रज़ा भागलपुरी को आप समाप्त करेंगे। बिल्कुल आप एक माहौल पैदा करें कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे और इरादा कत्ल का लेकर आए थे उमर, लेकिन उमर
के हाथ में वो तलवार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शांति गिर के सुन्नी मुसलमान, शांति गिर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अताए रब के तलबगार नात बनने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात बनने लगे। इरादा कत्ल का लेकर गए उमर, लेकिन उमर के हाथ में वो तलवार नात बनने लगे। फरोज़े हश फरोज़े हश जहन्नम कहेगा मौला, चलाऊं कैसे गुनहगार नात। फरोज़े हश जहन्नम कहेगा मौला, चलाऊं कैसे गुनहगार नात बनने लगे। अब आइए मैं चाहता हूँ वो खूबसूरत लहजा, जिस लहजे को सुनने के लिए आप लोग यहाँ से शाम से बैठे हुए हैं, इस मजलिस को आप लोग सजाए हुए हैं, उसी खूबसूरत आवाज को आपकी समातों के दहलीज तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। शहंशाह तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत मताहे रसूल जनाबे हसन रजा नूरी को आपकी समातों के दहलीज पर बिल्कुल मोहब्बतों के साथ जिस तरह मेहमान उसी तरह इस्तकबाल करें। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हुजूर सैयद शाह रिज़वानुल हुदा का नाम, हुजूर सैयद शाह फैज़ानुल हुदा का नाम। नारे तकबीर। इन मिसरों के साथ जनाबे हसन रज़ा नूरी को के खामोशी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोशी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। दोस्तों, हसन रज़ा नूरी वो शायर है, लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दो तो तरन्नुम टपक पड़े। नकी नजर कटी उम्र सारी गुनाह में। अभी आप खतीब बाकमाल हजरत हाफिज कारी मुनाजिर हुसैन कादरी से बेहतरीन खिताबत नायाब से मुस्तफिज हो रहे थे। यकीनन ऐसा महसूस हो रहा था कि कभी जिंदगी पे न की नजर कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। कभी जिंदगी पे न की नजर कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। और मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों हैं ख़ीमज़न, तेरी रहमतों की पनाह में। हजरात देख रहे हैं बाहर से वो खूबसूरत लहजा, जिस खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए आप यहाँ सरे शाम से बैठे हुए हैं, इस महफिल को सजाए हैं शहंशाह तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत मद्दाहे रसूल जनाबे नसीम अख्तर, जो झारखंड की सरजमीन से आपके दायरा मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मिंबर नास पर आमद है खतीब बाकमाल नासिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहब किबला, वो भी मिंबर नास पर तशरीफ फरमा है। कुछ ही लम्हों के बाद हजरत की खिताबत नायाब से मुस्तफिज होनी है। मैं चाहता हूँ इस वक्त बिल्कुल तेजी के साथ खूबसूरत आवाज को आपकी समातों के दहलीज पर पहुंचाऊं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक शेर पढ़ूं। इजाजत है? क्यों नहीं बोलते? लग रहा है आप लोग बिल्कुल अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, सहरी का वक्त नहीं हुआ है। आपकी इजाजत है? अगर आपकी इजाजत नहीं होती फिर भी हम शेर सुनाते हैं, समझ रहे हैं। अगर यहाँ नहीं सुनते, घर चले जाते तो हम आपका घर पहुंच के शेर सुनाते हैं। अगर इंतकाल हो जाते तो हम आपके कब्र पे शेर सुनाते हैं, समझ रहे हैं। शेर ही कुछ ऐसा है, अब सुने के तैयारे खुद के पुरकैफ सीने तक पहुंचता है। अरे यार, गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं, अपने हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह के तैयारे खुद के पुरकैफ सीने तक पहुंचता है।
محبت پیار کا روشن خزینے تک پہنچتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جناب اسلم رضا فیضی اور حافظ مناظر صاحب کی بلائی صرف نوازتے ہیں؟ دیکھیے گا آپ کا امام صاحب بھی نواز رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ بھی نوازتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے کہ تیارے خود کے پرکیف سینے تک پہنچتا ہے. حضرت بالکل اگر آپ کھڑے ہو کے آج ڈانٹ نہیں دیے تو میں اپنے کاروبار کو چھوڑ دوں گا, سمجھ رہے ہیں. یہ عزت کی بات ہے کہ تیارے خود کے پرکیف سینے تک پہنچتا ہے. بالکل آپ مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ تیارے خود کے پرکیف سینے تک پہنچتا ہے. محبت پیار کا روشن خزینے تک پہنچتا ہے. اور میاں اجمیر ایسا ڈاک کھانا ہے تصور کا جو خط ڈالو فوراً مدینے تک پہنچتا ہے. میاں اجمیر میاں امام صاحب ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. امام صاحب بہت محبت کرتے ہیں, یقیناً یہ نوٹ سے نوازے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے, حوصلہ 10 کا نوٹ دیتا ہے, اور بس وہی شاعر کامیاب ہوتا ہے جس کو مجمع ووٹ دیتا ہے. سمجھ رہے, آپ کا امام صاحب کا سپورٹ ہے بالکل, لیکن آپ کا بھی سپورٹ چاہیے کہ تیارے خود کا پرکیف سینے تک پہنچتا ہے. محبت پیار کا روشن خزینے تک پہنچتا ہے. میاں اجمیر ایسا ڈاک کھانا ہے تصور کا جو خط ڈالو فوراً مدینے تک پہنچتا ہے. اب اس وقت میں چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے شہنشاہ ترنم جناب اسلم رضا بھاگلپوری کو آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر بالکل محبت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, حضور سید شاہ رضوان الہدیٰ صاحب قبلہ کا دامن, حضور سید شاہ فیضان الہدیٰ کا دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہترین انداز میں قاری اسلم کو آپ سماعت کر رہے تھے. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں بڑے راز کہ ادبی اور مذہبی محل پہ کتابی صورت میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یقیناً آج ان کے آنے سے صرف زندہ ہی کو فائدہ ہے, مردوں کو بھی فائدہ پہنچا. سمجھ رہے ہیں, ایک شعر سنے آج آنا کے قبرستان کہ مردے کیا کہتے ہوں گے کہ یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں ویسے لے کے اٹھوں گا. بالکل خاموشی کے ساتھ میری نظامت ہوتی ہے, خاموشی کے ساتھ سنیں, میں تنہا نظامت کرتا ہوں اور تنہا اپنے شعر کو سنتا ہوں. یقیناً عاشق رسول اگر شعر اچھا لگے تو عاشق رسول مجمع سے بول دیں گے. ایک عاشق رسول, سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ ایک عاشق رسول کون ہے ہر شخص اپنے آپ میں تصور کرے کہ وہ عاشق رسول میں. بالکل میں شعر پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہ عاشق رسول کون ہے. قبرستان کے مردے آج کہتے ہوں گے کہ یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا. یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا. میں توشہ آخرت کا آج حضرت سے لے کے یہیں رک جاؤ, یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا. آج میں توشہ آخرت کا حضرت سے لے کے اٹھوں گا اور خدا سے. ماشاءاللہ دیکھیے یہ یقیناً بڑے کمال علماء کرام میں بڑے ناز میں تشریف فرما ہے شہنشاہ ترنم جناب الحاج لیاقت مہدی, بہت ہی معتبر شاعر. یقیناً وہ شاعر جب کامیاب ہوتا ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے, حوصلہ 10 کا نوٹ دیتا ہے, بس وہی شاعر کامیاب ہوتا ہے جس کو مجمع بھی ووٹ دیتا ہے. یقیناً آپ ووٹ دیں گے میرا تو آج یقیناً حضور کی موجودگی میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤں گا. شاعر کہتا ہے کہ یہیں رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا. میں توشہ آخرت کا آج حضرت سے لے کے اٹھوں گا اور خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل
पंचतन हूँ 5 हिस्से लेके, खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल न भरेगा, गुलामे पंचतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। बगैर किसी तमहीद के उलमा इकराम को आप समाप्त करेंगे, लेकिन मिंबरे नाज पे आले रसूल तशरीफ फरमा है। यकीनन आप ये खूबसूरत नूरानी चेहरा देखें, जब फैजानुल हुदा का चेहरा कि ये आलम है, तो मेरे हुसैन के चेहरे अनवर का क्या आलम होगा। यकीनन आप तब जाएंगे आज के इस जमीन के लोगों के एहसास और जज्बात यही कहते होंगे कि है आज पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला। हुजूर तशरीफ फरमा है, चेहरे अनवर को देखें कि है आज पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला नूर का। बाप है जब नूर का तो बेटे है पश्चिम माजना में, है पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला नूर का। बाप जब है नूर का तो बेटा भी है नूर का। देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का, देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा याद, देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा याद आ गया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, देख कर मिसरे अहमद रजा याद आ गया। देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा याद आ गया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब बगैर किसी तमहीद के हसन रजा बिल्कुल आपसे मुलाकात करते रहेंगे, बगैर किसी तमहीद के खिताबत नायाब सुनने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इसी वक्त मैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा जावेद अख्तर साहब क़िबला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बिल्कुल मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे मिसाल मसलक के आला हज़रत, नारे बेहतरीन अंदाज में कारी असलम को आप समाप्त कर रहे थे। हजरात आप देख रहे हैं बड़े राज के अदबी और मजहबी महल पे किताबी सूरत में पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फैजानुल हुदा साहब क़िबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। यकीनन आज इनके आने से सिर्फ जिंदा ही को फायदा, मुर्दों को भी फायदा पहुंचा। समझ रहे हैं? एक शेर सुने, आज यहाँ के कब्रिस्तान के मुर्दे क्या कहते होंगे कि यहीं रुक जाओ और देखो मैं वैसे लेके उठूंगा। बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी नजामत होती है, खामोशी के साथ सुने, मैं तन्हा नजामत करता हूँ और तन्हा अपने शेर को सुनता हूँ। यकीनन आशिक रसूल अगर शेर अच्छा लगे तो आशिक रसूल मजमा से बोल देंगे। एक आशिक रसूल सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक आशिक रसूल कौन है? हर शख्स अपने आप में तसव्वुर करे तो वो आशिक रसूल मैं। बिल्कुल मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो आशिक रसूल कौन है। कब्रिस्तान के मुर्दे आज कहते होंगे कि यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। मैं तोशा आखिरत का आज हजरत से लेके, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। आज मैं तोशा आखिरत का हजरत से लेके उठूंगा और खुदा से माशाअल्लाह। देखिए ये यकीनन बड़े कमाल उलमा इकराम में बड़े नाज में तशरीफ फरमा है शहंशाह तरन्नुम जनाबे अलहाज अली आकिब मेहदी, बहुत ही मोतबर शायर। यकीनन वो शायर जब कामयाब होता है कि एक शायर ने कहा कि शायरी को सपोर्ट देता है, हौसला 10 का नोट देता है, बस वही शायर कामयाब होता है जिसको मजमा भी वोट देता है। यकीनन आप वोट देंगे मेरा तो आज यकीनन हुजूर की मौजूदगी में मैं भी कामयाब होते हुए नजर आऊंगा। शायर कहता है कि यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। मैं तोशा आखिरत का आज हजरत से लेके उठूंगा और खुदा से सिर्फ
जन्नत लेके मेरा दिल न बहले गा गुलामे पंचतन हूँ 5 हिस्से लेके खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल न बहलेगा गुलामे पंचतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा बगैर किसी तमहीद के उलमा इकराम को आप समाप्त करेंगे लेकिन मिंबरे नाज पे आले रसूल तशरीफ फरमा है यकीन आप ये खूबसूरत नूरानी चेहरा देखें जब फैजानुल हुदा का चेहरा कि ये आलम है तो मेरे हुसैन के चेहरे अनवर का क्या आलम होगा यकीनन आप तब जाएंगे आज के इस जमीन के लोगों के एहसास और जज्बात यही कहते होंगे कि है आज पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला हुजूर तशरीफ फरमा है चेहरे अनवर को देखें कि है आज पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला नूर का बाप है जब नूर का तो बेटा है पश्चिम माजना में एक ऐसा उजाला नूर का बाप जब है नूर का तो बेटा भी है नूर का देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा याद आ गया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा देख कर मिसरे अहमद रजा याद आ गया देख कर चेहरे फैजानुल हुदा का मिसरे अहमद रजा याद आ गया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का अब बगैर किसी तमहीद के हसन रजा बिल्कुल आपसे मुलाकात करते रहेंगे बगैर किसी तमहीद के खिताबत नायाब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए इसी वक्त मैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा जावेद अख्तर साहब किबला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ बिल्कुल मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर नारे मिसाल मसलक के आला हज़रत नारे कलामे आला हजरत हमारी कानों में जब जाती है यकीनन दिल तड़प उठता है और सदाएं यही होती है कि बच्चा जानता है आला हजरत कौन है एक बार आला हजरत के नाम पे हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह और पढ़ कर कह दे या हबीब अल्लाह सब यहाँ आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं कि बच्चा जानता है आला हजरत कौन है सारी दुनिया को पता है आला हजरत कौन है उसकी नादानी पे हैरत होने लगती है मुझे जब कोई पूछता है हसन रजा आला हजरत कौन है उसकी नादानी पे देखे माशाअल्लाह हमारे करीम चाचा आ गए हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं जब गांव के सदर मालदार जब की उनकी मौजूदगी होती है यकीनन फिर हिम्मत हो जाता है और हमारे सदर साहब बिल्कुल उनकी आमद हो चुकी है अब कोई डरने की बात नहीं है और यकीनन हसन रजा आज जो बोल रहा है उस्ताद मोहतरम हाफिज कारी नवाजी साहब किबला की कतो काबिश की बुनियाद है जो हसन रजा आपके दरमियान कुछ लम्हे के लिए आपके दरमियान मौजूद आ जाता है अभी बेहतरीन शाम से नबी की नात आप समाप्त कर रहे थे और अभी ये मामला बिल्कुल चलता ही नजर आएगा इसलिए आज काफी के सरजमीन पे एक उभरता हुआ आवाज जो आज काफी के वकार में इजाफा करते हुए नजर आ रही है हिंदुस्तान जाएगा ना पाकिस्तान जाएंगे माइक खराब रहा तो सीधे कब्रिस्तान जाएंगे माइक आप बिल्कुल सेव कर दीजिए एक जगह बिल्कुल आप बहुत अच्छे बजा रहे थे पहले जिस तरह था वहीं पे आप रख दीजिए उंगली मत कीजिए समझे यकीनन और इकराम में मेरे नाज पर तशरीफ फरमा है शहंशाह तरुण जनाबे सलमान रजा को सुनने के लिए तैयार हैं यकीनन ऐसा मुझे लग रहा है कि माइक जिस तरह आज है यकीनन वो नबी की नात इस तरह आपको सुनाएंगे कि आपका दिल तड़पता हुआ नजर आएगा लेकिन यकीनन उस्ताद मोहतरम मेरे नाज पर तशरीफ फरमा है पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बार तरफ कर कह दे या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों के साथ कह दे या हबीब अल्लाह पाकिस्तान की जमीन है
شاعر نے کہا جسے جنت چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے، جسے جنت چاہیے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ اس کے بعد پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمن نے 4 مصرے پڑھا، میں پڑھتا ہوں۔ یقیناً یہ حقیقت بات ہے کہ جو صاحب جنت کے دامن سے وابستہ ہے اسے جنت کی خواہش کیا ہوگی، اسے جنت کی ضرورت کیا ہے، اور کیوں نہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور رضوان الہدیٰ اور فیضان الہدیٰ جیسے شخصیات سے وابستہ ہے۔ لیکن ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ شعر سنیں، پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا۔ حضور دعا چاہتا ہوں، یقیناً حسن رضا یہ پہلی بار پڑھ رہا ہے آپ کے درمیان کہ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، لفظش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا۔ ڈر رہے ہیں کیا آپ لوگ کسی سے؟ ڈر رہے ہیں؟ بہت چالاک ہے وہ، بہت چالاک دشمن ہے وہ، سہارا دے کے مارے گا۔ سنو اے مچھلیوں تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کہ وہ ہمارے سب اڑائے گا، اور ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستان رکھی، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا کہا ہے ہمارے سامنے۔ ماشاءاللہ دیکھیں استاد محترم نے یہ ثابت کر دیا کہ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، حوصلہ 10 کا نوٹ دیتا ہے، اور بس وہی شاعر کامیاب ہوتا ہے جس کو مجموع ووٹ دیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم سامنے تو ہے کربلا کی داستان رکھی، دیکھیں رمضان بھائی کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب پڑھیں گے اور ہم سے مسافہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں چہرہ بتا رہا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں جو ابھی شعر میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، بالکل بغیر کسی تمہید کے ابھی سلمان رضا کو آپ سماعت کریں گے۔ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، لفظش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا، اور جنت کے کھلونوں سے اس کا کیسے پہلے، اتنا دیوانہ نہیں دیوانہ محمد کا، جنت کے کھلونوں سے کھلونوں سے دل اس کا کیسے پہلے، اتنا نہیں دیوانہ محمد کا۔ اب میں چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے وہ خوبصورت آواز کو آپ کے درمیان پیش کر دوں جو اپنے اشعار و ترنم کی شبنم سے قلب منیر کو بادی دی، روح کو پاکیزی کا احساس، ذہن کو تقدس کی غذا، نگاہوں کو گنبد خضرا کا جمال سونپ جانے کا جو بھرپور انداز جانتا ہے، جو یہ میں کہہ دوں کہ بھیجا نہ ہوگا، بات کرتے ہیں تو کلیا سا کھلا دیتے ہیں، ارے یار جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو بجلی سے گرا دیتے ہیں۔ شہنشاہ ترنم جناب سلمان رضا، بالکل ان کو سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور محبتوں کے ساتھ استقبال کریں۔ یقیناً لگے کہ آپ اپنے گاؤں کے زمین میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھ کے نبی کی نعت سن رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ استقبال کریں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لگے اعلیٰ حضرت، لگے اعلیٰ حضرت، آجا کا ہندوستان، آجا کا ہندوستان، زمین ماجرا، زمین ماجرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان مصروں کے ساتھ جناب سلمان رضا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ لفظ پر ہے صدائے حیات، آنکھ کو ہر نثار کرتی ہے، مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، لفظ پر ہے صدائے حیات، آنکھ کو ہر نثار کرتی ہے، آسمان پر اداس ہے تارے، دوستو چاندنی انتظار کرتی ہے۔ آیا تھا محفل میں آئینہ بیچنے، آیا تھا محفل میں آئینہ بیچنے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، اور پڑھ کے ناتے پاتے مصطفیٰ اس نے سب کے حصے کی اکیلا بہترین انداز میں ابھی جناب زاہد رضا کلکتوی سے آپ نبی کی نعت سماعت کر رہے تھے۔ بالکل زاہد بھائی نے کربلا کے حوالے سے بہترین اشعار انہوں نے پڑھا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ کی
इजाजत हो, इजाजत है? अगर आपकी इजाजत नहीं होती फिर भी हम शेर पढ़ते, समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं सुनते, घर चले जाते, तो हम आपका घर पहुंच कर शेर सुनाते, समझ रहे हैं? अगर वहां नहीं होते, इंतकाल हो जाते, तो हम आपके कब्र पर जाकर शेर सुनाते। तो इसलिए शेर ही कुछ ऐसा है कि आवाज दे तो खुद से कौशल निकल पड़े, जाहिर भाई कि आवाज दे तो खुद से कौशल निकल पड़े, नहरे बरात खेमे के अंदर निकल पड़े। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं, किसी से डर रहे हैं क्या? इसलिए जाहिद भाई ने अभी बताया कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल बहुत खराब इस वक्त चल रहा है और हमें मुसलमानों को भगाने की बात भी हो रही है। ये आवाज बहुत पहले आई थी दिल्ली के सरजमीन से कि मुसलमानों को भगा दो, मुसलमानों को हिंदुस्तान के सरजमीन पे अब नहीं रखा जाएगा, अब भगा दो। सब डर गए थे। गरीब नवाज का मस्ताना उठा और कहने लगा कि क्या कहा, हमें भगा देगा? कहा हाँ। कहा क्या कहा? हमें भगा देगा? कहा हाँ। गरीब नवाज के मस्ताना ने कहा कि जब मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट को नहीं बिठा पाया, तो हम गरीब नवाज गरीबों को कैसे मुल्क हिंदुस्तान से भगाएगा? अब आपकी ये सदाएं होनी चाहिए कि अबे नादान। माशाअल्लाह, देखिए चाचा ने ये 10 का नोट देकर ये बता दिया कि शायरी को सपोर्ट देता है, हौसला 10 का नोट देता है, और बस वही शायर कामयाब है जिसको मजमा वोट देता है। अगर हमारे जाहिद भाई बिल्कुल सपोर्ट है और देख रहे हैं साहिबान बिल्कुल खूबसूरत आवाज के मालिकान में बड़े नाज को तशरीफ फरमा है। अब मैं आपको मुल्क हिंदुस्तान के हवाले से अभी जाहिद भाई से बहुत ही बेहतरीन कलाम समाप्त कर रहे थे। बहुत पहले जाहिद भाई अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जाहिद भाई बिल्कुल आज देख ले किस तरह मुल्क हिंदुस्तान से बिल्कुल आप लोग डरे हुए। आपकी सदाएं होनी चाहिए कि अबे नादान जब मेरा ख्वाजा मेरा अजमेर है हिंदुस्तान में, तो हम सुन्नी बरेली मुसलमान कैसे जाएं पाकिस्तान? ऐसा लग रहा है ऐसी जगह जाहिद भाई हम पहुंच गए कि दीवानगी में कम नथी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में न जाने किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। अगर आप लोग बेदार हैं तो अपने हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है मेरा, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है मेरा, आसमान थोड़ी है। लहू हमारा भी शामिल है इसी मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान। लहू हमारा भी। मैं माइक ऑपरेटर से कहूंगा भाई कि बिल्कुल माइक आप सही सलामत कर दें, इसलिए मुल्क हिंदुस्तान के जगह शायर को भी अभी सामाईन को समाप्त करनी है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आवाज आप बेहतरीन कर दे। अगर माइक खराब रहा तो मैं कहूंगा कि चीन जाएंगे ना जापान जाएंगे, माइक खराब रहा तो सीधे कब्रिस्तान। समझ रहे? माइक बिल्कुल आप सही करें। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है मिया, आसमान थोड़ी है। लहू हमारा भी शामिल है इसी मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लहू हमारा भी शामिल है इसी मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आगे बढ़ी, गरीब नवाज का मस्ताना उठता है और कहता है कि नबी के फिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। नबी के फिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेजबान थोड़ी है, दयारे ख्वाजा है, कलियर है और शहरे बरेली है। बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है और शहरे बरेली है। माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूँ जनाबे जमजमा कौसर साहिबान से कल जनाबे अब्दुल रहमान रजा कादी को
آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر بغیر کسی تمہید کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی کی نعت سماعت کر رہے تھے. ہاں یہی عشق ہے، ہاں یہی عشق ہے. یقیناً آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. یہ ابتدا کا عالم ہے، آپ لوگ انتہا کا عالم کیا دکھائیں گے. یقیناً سب لوگ یہاں آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ایک بار پورا مجمع جھوم کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آل رسول کے نام پہ کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دے یا حبیب اللہ. دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ خطیب با کمال حضرت حافظ و قاری جاوید اختر صاحب قبلہ منبر ناز پر تشریف فرما ہو گئے ہیں. بہترین خطابت نایاب سے ابھی مستفیض ہوں گے. یقیناً حضرت آپ تھوڑا آگے آ جائیے. بالکل میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کچھ بولنا چاہتا ہوں. یقیناً وہ خوبصورت خطیب کو میں پیش کر رہا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ اب ایک شعر سنیں. ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دے یا حبیب اللہ. میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ. میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو، اور جہنم منتظر ہے میرا لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو. جہنم منتظر ہے، جہنم منتظر ہے، جہنم منتظر ہے میرا لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو. اور یہاں سب حضور رضوان الہدیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. حضور رضوان الہدیٰ کا فرمان سنیں کہ میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو، جہنم منتظر ہے میرا لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو. ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو. ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، ہمیشہ نام لو احمد رضا کا، نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو. اور نبی کی شان میں بکواس مت کر. کوئی سنی اگر جھنجلا گیا، نبی کی شان میں بکواس مت کر. کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو، میرا گھر رشک جنت بن گیا تو، اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو. اس وقت میں چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے خطیب با کمال، خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری جاوید اختر صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر محبتوں کے ساتھ ایک نیا رنگ پیدا کریں اور استقبال کریں. نعرہ تکبیر، اور نیا رنگ پیدا کریں محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضور رضوان الہدیٰ کا دعوت، حضور فیضان الہدیٰ کا دعوت. نعرہ تکبیر. حضرت کون ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے، اور اس کی نادانی سے حیرت ہونے لگتی ہے مجھے جب کوئی پوچھتا ہے حسن رضا اعلیٰ حضرت کون ہے. سبحان اللہ. اس کی نادانی پہ حیرت ہونے لگتی ہے جب کوئی پوچھتا ہے حسن رضا اعلیٰ حضرت کون. حضرات بہت دیر سے آپ نبی کے نام بہترین انداز میں سماعت کر رہے تھے. اس وقت بہترین آواز کے مالک منبر راز پر تشریف فرما ہے شاعر اہل سنت حضرت جلال الدین قمر منبر راز پر تشریف فرما. یقیناً یہ آواز آج اڑیسہ کی سرزمین پہ اس طرح مرا دیں گے وقار میں آج اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب میں
मैंने ये आवाज सुना तो दिल की कैफियत यही कह रहा था कि मरमर से तराशा हुआ। सुभान अल्लाह। यकीनन अल्लाह ने वो खूबसूरत आवाज इनको अदा किया है कि मरमर से तराशा हुआ चांद सा पैकर होठों से वो मोहब्बत का रस खोल रहा है। जब ये बात करते हैं तो होता है महसूस इंसान की ताज महल बोल रहा है। सुभान अल्लाह। होता है महसूस इंसान की ताज महल बन रहा है। यकीनन बेहतरीन अंदाज में भी तमाम शोहरान से नबी के नाम समाप्त कर रहे थे और हमारे भाई ने बेहतरीन अंदाज में मदीना शरीफ के हवाले से कलाम पढ़ा और दिल बिल्कुल बाग हो गया और दिल की कैफियत यही कह रहा था। एक आशिक रसूल की ख्वाहिश क्या होती है? तमाम आशिक रसूल जब मदीना शरीफ जाते हैं सबकी अलग अलग ख्वाहिश होती है, लेकिन एक आशिक रसूल से पूछा गया कि जब आप मदीना शरीफ जाएंगे आपकी ख्वाहिश क्या होगी, आपकी कैफियत क्या होगी? तो उसने इजहार किया कि मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। अगर बेदार है तो आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा, मैं शहरे तैयबा की सीन लूंगा। कभी इधर से कभी इधर से कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अरे यार दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। सुभान अल्लाह। के दौर में न जाने किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में कम से कम आप माहौल बनाए बेदार हो जाए। इस वक्त बेहतरीन आवाज आपकी समातों के तहलील में होने वाले हैं। आप बेदार हो जाए कि मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा। कभी इधर से कभी इधर से कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तमाशा इतना तो कर गुजरना नबी का आशिक वो तो मरना कि लोग देखे तेरा जनाजा। कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, तमाशा इतना तो कर गुजरना नबी का आशिक वो तो मरना। लगता कभी कभी आप लोग सुभान अल्लाह कहना भूल है कि नहीं? इसलिए कि शोरा हज़रात अगर भूल जाएं तो ये बड़ी बात है कि ये कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, लेकिन वो बार बार अलग अलग शेर पढ़ते हैं, लेकिन आपको बार बार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ही बोलना है कि नहीं? जैसा कि एक शायर प्रोग्राम में गए एक कलाम लिख कर और जिस तरह हमारे आवाज के मालिक मेरे नाज पर तशरीफ फरमा, उसी तरह एक शायर ने एक जलसे में गए और हुस्न करके जब नबी कलाम को लिख के एक कागज में तहरीर करके वो मेरे नाज पर आए। पहला मिसरा याद ही था कि जलील शमा हुआ परवानों का कबूल, जलील शमा हुआ परवानों का कबूल, वो